Okay, now let's start further. When we talk about footnoting, we have already mentioned that why footnoting: to give recognition to the work of other person. Secondly, to elaborate any point which might break the flow of the main paper, right? That is the main two reasons that we do footnoting. And the difference between footnoting and endnoting is footnoting appears on the same page where we have mentioned it, and endnoting appeared at the end of the research paper. That is the main difference. Now there are number of styles prevalent with regard to footnoting. First is Indian Law Institute, the style framed by them. Second is a scholar, that is Oxford University, standard for the citation of legal authorities. Third is Blue Book edition, and fourth is university specific. It means sometimes university give its own rules with regard to footnoting. So if you are writing a research paper or research article, then check the guidelines whether which style they have mentioned for the footnoting, right? There is a minor difference in all these footnoting styles, but please ensure whenever opt one style and follow that only, right? And if there is no guideline with regard to the footnoting, in that case, nowadays go for Blue Book edition because it is more acceptable, right? So if no guideline, then go for Blue Book edition. Next comes the infra and supra note. This term is used when we are referring a footnote which has already mentioned in the research paper. अगर आपने पहले कहीं कोई footnote दिया है, कोई source mention किया है और उसी को आप दोबारा cite करना चाह रहे हैं, then we use supra note or infra. For example, on footnote 3, we mentioned about a book, and on footnote 10, we are also mentioning about the same book. Then we don't go for the details of the book, we just mention supra note 3 or infra 3, right? And if the page number is different, for example, when we are referring on footnote 3, we refer page number 10 of the book. And when we are on referring it on footnote 10, then we are referring page number 100. Then in that case, we will write supra note 3, comma, page 100. This is the way to write. Ibid is used when we are referring a footnote immediately given above. For example, आप footnote 10 पे footnoting करना चाह रहे हैं और उस पे same source mention करना चाह रहे हैं जो footnote 9 में है. In that case, we will use ibid. If the page number is also same, book का 10 पेज था, वही आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप सिर्फ लिखोगे ibid. But अगर बुक का पेज नंबर आप डिफरेंट पेज नंबर यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आप लिखोगे ID डॉट पेज नंबर 10, पेज नंबर 100, जो भी डिफरेंट पेज आप यूज करें वो मेंशन करेंगे. सो अगर पेज नंबर भी सेम है, सोर्स भी सेम है, तो आप ibid यूज करोगे. अगर सोर्स सेम है लेकिन पेज नंबर डिफरेंट है, इन दैट केस आप क्या करोगे, ID डॉट यूज करके लिखोगे, राइट? दिस इज द फुटनोटिंग स्टाइल. After footnoting comes the reference and bibliography. References and bibliography हमेशा रिसर्च पेपर के एंड में लिखा जाता है, जहां पे हम लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज मेंशन करते हैं. मींस हमने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हैं. अब फुटनोटिंग और रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी में क्या मेन डिफरेंस है कि फुटनोटिंग में हम पेज नंबर, पैराग्राफ सब मेंशन करते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, हम बात करते हैं आर्टिकल का, किसने लिखा है और किस कहाँ की पब्लिकेशन है, आइदर इट्स बुक और आर्टिकल और जर्नल. हम सिर्फ इतना मेंशन करते हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं लिखते हैं कि कौन से पेज नंबर है, कौन सा पैराग्राफ है. हम ये सब इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी में नहीं देते. नाउ द टर्म रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी ये इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं, बट यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? जो रेफरेंसेस टर्म है ये कब यूज की जाती है? ये तब यूज की जाती है जब हमने जो सोर्सेस को साइट किया है पेपर में, वही हमने रेफरेंसेस में लिखना है. इन एडिशन हम कोई भी नया सोर्स नहीं लिखेंगे जिसको हमने अपने पेपर में रेफर नहीं किया, हमने उसे साइट नहीं किया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिब्लियोग्राफी, हम इसमें अगर हम बिब्लियोग्राफी टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे हम उन सब सोर्सेस को मेंशन करते हैं जिनको हमने चाहे साइट नहीं किया अपने पेपर में, हमने उनका मेंशन नहीं किया, बट हमने उनको रीड किया था व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च पेपर, हम उनको भी बिब्लियोग्राफी में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी.
While writing references and bibliography, हम कौन सा स्टाइल यूज कर सकते हैं? APA, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा बनाया गया जो स्टाइल है वो यूज कर सकते हैं, या फिर MLA, दैट इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये दो मोस्ट प्रेवलेंट स्टाइल्स हैं टू राइट अवर रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी। वी कैन यूज आइदर ऑफ देम। Now comes the last part. Once you have written everything, then comes the formatting part. Very important. Your paper must look good, right? Because ये नहीं होने, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कुछ कोई लेफ्ट अलाइनमेंट है, कोई पैराग्राफ राइट अलाइनमेंट है, कोई जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा पेपर एक यूनिफॉर्मिटी में ही लिखा होना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी की जानी चाहिए। नाउ फॉर्मेटिंग में क्या की पॉइंट है? आपको यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कैसे? अगर आप मान लीजिए कोई केस लॉ रेफर कर रहे हैं, केसेस हम लिखते हैं A वर्सेस B, C वर्सेस D, वहां पे वर्सेस को लिखने के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप केवल V डॉट यूज कर सकते हैं या V/S, दोनों ही वर्सेस लिखने की फॉर्म्स है। बट इफ यू ऑप्ट वन वे, ये नहीं है कुछ केसेस V के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ केसेस VS के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये मेथड आप ऑप्ट नहीं कर सकते। ऑप्ट वन एंड यू फॉलो द सेम विद द डेट्स। दोनों ही मेथड जो हैं डेट लिखने के सही हैं, लेकिन जब आप पेपर लिख रहे हो ऑप्ट वन, ये नहीं है कुछ जगह पे आप फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हो, कुछ जगह पे आप सेकंड यूज कर रहे हो। डोंट डू दैट। नाउ जो पेपर है हमेशा जस्टिफाइड अलाइनमेंट में लिखा जाता है। जो इसकी फॉर्मेटिंग की कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक होती हैं। जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला है, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने वाला है या प्रेजेंट होने वाला है, वो खुद अपनी गाइडलाइंस देते हैं, आप उसको फॉलो करिए। अगर नहीं देते देन द मोस्ट प्रेवलेंट वन ये है कि जो आप मेन कंटेंट लिखते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखते हैं, हेडिंग्स भी, और उसका साइज रहता है 12 विद 1.5 स्पेसिंग। जस्टिफाइड भी लिखते हैं, एंड जो फुटनोट्स हैं वो कैलिब्री में लिखते हैं, साइज 10 एंड स्पेसिंग 1। दिस इज द जनरल मेथड विच वी ऑप्ट। और अगर आप कोई कोटेशन मेंशन कर रहे हैं देन उसको हमेशा इटैलिक्स में लिख के इन्वर्टेड कॉमास में पुट करते हैं अलोंग विद द फुटनोट। एंड में आप उसको फुटनोट देते हैं। हर पैराग्राफ जो है वो टैब स्पेसिंग के साथ स्टार्ट होता है। मींस जहां पे ये मैंने अंडरलाइन दिखा रखा है वो अंडरलाइन नहीं है, दैट इज द स्पेस विच वी गिव एट द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ। हर पैराग्राफ टैब स्पेसिंग के साथ स्टार्ट होगा, और फुटनोटिंग भी जो है वो टैब स्पेसिंग के साथ ही लिखी जाती है। दिस इज द फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। एंड अब कोई बार क्वेश्चन आता है कि मैम सब हेडिंग्स हैं वो कितनी देर तक दे सकते हैं, और उसको डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ लोग अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ कलरफुल टेक्स्ट यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मैक्सिमम 5 हेडिंग्स दे सकते हैं, सब हेडिंग्स अप टू 5 लिमिट। एंड एवरी हेडिंग हैज इट्स ओन वे ऑफ फॉर्मेटिंग। जैसे जो फर्स्ट हेडिंग होगा वो कैपिटल प्लस बोल्ड होना चाहिए, उसके सारे अल्फाबेट्स कैपिटल होंगे और वो बोल्ड होगा। अगर सेकेंड सब हेडिंग है देन वो सिर्फ बोल्ड होगा, कैपिटल नहीं होगा। वो होगा फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड रेस्ट नॉर्मल। अगर थर्ड सब हेडिंग है वो बोल्ड प्लस इटैलिक्स होगा, वो इटैलिक्स भी होगा और बोल्ड भी होगा। फोर्थ में आके सिर्फ इटैलिक्स रह जाएगा, उसमें बोल्ड नहीं आएगा। एंड अगर फिफ्थ सब हेडिंग है वो सिर्फ नॉर्मल रनिंग, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं वैसे होगा, उसमें ना इटैलिक्स होगा ना बोल्ड होगा। एंड इसके बाद सब हेडिंग अलाउड नहीं है। सो अगर आपने इसके बाद भी कोई सब हेडिंग दी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ नॉर्मल रनिंग टेक्स्ट। दिस इज द मेन गाइडलाइन व्हिच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ पेपर। नाउ इफ योर पेपर इज रेडी, फर्स्ट ड्राफ्ट इज रेडी, देन आप उसको रीड करेंगे, इम्प्रूव इट। इम्प्रूव कैसे करेंगे? जब आप पेपर लिख लेते हैं यू फाइंड कि कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो वहां पे नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट मेंशन दैट, आप उसको रिमूव करेंगे। एंड हो सकता है आपको लगे फर्स्ट रीडिंग के बाद कि कुछ एस्पेक्ट्स पे जो मेरा पेपर वो लैक कर रहा है, उनको आप ऐड करेंगे। दिस इज द यू हैव टू डू इन फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद जब आपने इम्प्रूवमेंट कर लिए, देन जो सेकेंड ड्राफ्ट होगा उसको आप क्या करेंगे, उसमें आप ग्रामेटिकल एरर्स चेक करेंगे, टाइपिंग एरर्स चेक करेंगे। एंड जब भी आप टाइपिंग की बात हो रही है, ग्रामेटिकल एरर्स, उसमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक, ऑटो करेक्ट का मीन्स आता है, आप चेक करेंगे कि आपकी जो लैंग्वेज है लैपटॉप में आपने यूएसए ऑप्ट की है या यूके। इन इंडिया जनरली वी यूज यूके इंग्लिश,
दो nowadays USA English is also acceptable, but opt one. ये ना हो कि कुछ words यूके इंग्लिश के हैं और कुछ वर्ड यूएसए इंग्लिश के, ये नहीं होना चाहिए. ऑप्ट वन वे. once you are ready with the paper, now comes very important question. प्लेगरिज्म नहीं आ पेपर में. प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्लेगरिज्म होता क्या है? प्लेगरिज्म है कि जब आप किसी और के कंटेंट को अपने पेपर में लिखते हो, अपना बना के लिखते हो, यू मीन्स यू आर कॉपिंग समवन एल्स कंटेंट, दैट इज प्लेगरिज्म. आपका रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वो प्लेगरिज्म फ्री नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पेपर शुड बी प्लेगरिज्म फ्री. प्लेगरिज्म फ्री होने के लिए आप कोई भी जहां पे भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जहां पे भी आप उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, आपको वहां की गाइडलाइंस चेक करनी पड़ेंगी. कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो 10% प्लेगरिज्म अलाउड करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट 20% अलाउड करते हैं. आपको वहां की गाइडलाइंस चेक करनी पड़ेगी. इट मीन्स अगर आपका आर्टिकल 15,000 वर्ड्स का है तो उसमें 1500 वर्ड्स क्या है आप कॉपी कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. राइट नाउ इस प्लेगरिज्म से बचे कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट. सबके मन में आता है कि हमने लिटरेचर रिव्यू किया, हमने उसको रीड किया एंड देन वी रीराइट इट, तो हम प्लेगरिज्म से कैसे करें? फर्स्ट रूल, डू नॉट कॉपी पेस्ट. कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है. सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं प्लेगरिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए? रीफ्रेज करिए, लैंग्वेज को घुमाइए. थर्ड, सिनोनिम्स यूज करिए. जहां पे लिखा हुआ है यू शैल डू इट, उसको घुमा के लिखिए. इट इज मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू डू दैट. मैंडेटरी वर्ड यूज किया शेल की जगह, ऑब्लिगेटरी लिखिए. आप सिनोनिम्स यूज कीजिए. दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस द प्लेगरिज्म. राइट. नेक्स्ट इज, जब आपने कोई पेपर भेजना है, आपको इंश्योर करना है कि वो 10 या 20% से बिलो हो. उसके लिए आप क्या करते हैं? गूगल पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप उन पे चेक कर लेते हैं. ये गलती कभी मत करना. कभी भी गूगल पे अपना पेपर को अपलोड करके प्लेगरिज्म चेक नहीं करना. आप अपनी कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी में जाइए और वहां पे प्लेगरिज्म चेक करवाइए. प्लेगरिज्म चेक करवाते टाइम आपका जो हम कहते हैं जो आपका फॉर्मल नेम या जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम चल रहा है, वो नाम से आप अपनी फाइल को सेव कीजिए. उससे क्या होगा, वंस द प्लेगरिज्म इज चेक, वो आपको उस टॉपिक पे, उस पेपर पे कॉपीराइट आ जाएगा आपका. इट मींस कभी भी कोई उसको चेक करेगा तो वो दिखाएगा कि मिस्टर ए का ही ये पेपर है. राइट. उसी से आप अपना प्लेगरिज्म चेक करिए और उसको अगर ज्यादा भी आता है लिमिट से, आप उसको करेक्ट करके दोबारा चेक करेंगे तो आपका सेव रहेगा. अगर आपने गूगल पे चेक कर लिया एंड देन गो फॉर द यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर, उससे क्या होगा, आपका 100% प्लेगरिज्म आ जाएगा. इसीलिए गूगल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आप उनमें से कोई भी यूज मत कीजिए. आप अपनी यूनिवर्सिटी का प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर यूज करिए. I hope it helps you to learn the basics of research paper. If you have any doubt, you can ask. Any doubt? Ma'am, what is the difference between abstract and introduction? Sorry, can you please repeat? What is the difference between abstract and introduction? Okay. एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप उसको थोड़ा इलेबोरेटिव वे में लिखते हैं. आप उसमें हाइपोथेसिस, एज आई सेड अर्लियर, यू कैन चेक हाइपोथेसिस, रिसर्च गैप, आप कैसे उसको कवर करने वाले हैं. जो इंट्रोडक्शन है, इट इज लेंदी. आप उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हो टॉपिक का, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो, उसमें लिटरेचर रिव्यू भी देते हो, आप रीजंस भी बताते हो कि आपने कोई टॉपिक क्यों पिक किया है. सो इंट्रोडक्शन इज मोर इलेबोरेटिव. बट जो एब्स्ट्रैक्ट है, जब भी आप कोई पेपर पब्लिश करवाने के लिए जाता है, मींस रिसर्च आर्टिकल की अगर हम बात करें, उसमें मैंडेटरी होता है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना पड़ेगा आपको. एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट होती है, दैट इज 250 to 300 वर्ड्स. जनरली इट इज 250 to 300 वर्ड्स. आपको उन 300 वर्ड्स में अपने पेपर को एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन क्या करना है? आपको टॉपिक बताना है, आपको बताना है कि आपकी क्या गैप था और आपने उसको कैसे कवर किया है. आप उसको कंक्लूजन भी उसमें मेंशन करते हैं और आप अपनी सजेशन भी मेंशन करते हैं. बट व्हेन यू आर राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट, आपको वर्ड्स के साथ बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है, बिकॉज आप इलेबोरेटिव वे में नहीं लिख सकते. यू हैव टू मेंशन द कंक्लूजन, सजेशन, गैप,
topic, everything, but within 3 words. That is the main difference. Introduction में आप conclusion नहीं लिख रहे, suggestion नहीं लिख रहे, लेकिन जब आप abstract लिख रहे हो, आप methodology भी बताओगे कि आपने कौन सा method use किया, doctrinal, non-doctrinal, ये भी आप mention करते हो. आपने उससे क्या कंक्लूजन निकाला है वो भी आप मेंशन करते हो. आप उसको इंप्रूव करने के लिए जो आपका की पॉइंट, की सजेशन है, आप वो भी उसमें मेंशन करते हो. तो एब्स्ट्रैक्ट जो है आपके पूरे पेपर को हाईलाइट कर रहा है, पूरा, इंक्लूडिंग द सजेस्टिव पार्ट ऑल्सो. इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन और सजेशन कवर नहीं होता है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और ध्यान रखिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको मैंडेटरी, इफ यू आर गोइंग फॉर द आर्टिकल, आपको जरूर मेंशन करना पड़ता है. एंड वंस हाई कोर्ट जज सेड कि लेंथी तो लिखा जा सकता है, जब आपको कम लिखना पड़ता है तब सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल वही होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट जो है यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज जैसे हमने कहा इंट्रोडक्शन से हम देखते हैं कि रीडर आपका रीड करेगा कि नहीं, लेकिन जब वो पब्लिश होता है आर्टिकल तो आप एब्स्ट्रैक्ट देते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट डिसाइड करता है, रीडर्स एब्स्ट्रैक्ट से डिसाइड करते हैं कि आपका पेपर पढ़ा जाएगा कि नहीं. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द लैंग्वेज व्हेन यू आर राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट. एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? Okay. At the end, I would just want to say that we are providing services with regard to the legal research writing. Any kind of legal research writing, it's be it a paper, research article, thesis, term paper, or dissertation. And if you need any kind of such service, you can contact us. The contact details are given below in the PPT itself. And if you want more information on research paper, then you can subscribe to our YouTube channel. I hope it helps you a lot. Thank you.